إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ کل کے درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد ماجد کے لیے اپنا کرتا بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ ان کی آنکھوں پہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی آنکھوں کی بصارت واپس فرمائے گا اور وہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء، اولیاء، صالحین، کاملین کے تبرکات سے استفادہ کرنا قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق جائز ہے، خواہ اس کے ٹوپی ہو، عمامہ ہو، کرتا ہو، یا اس کا برتن ہو، یا اس کی جگہ ہو، یا مزار ہو۔ ان تمام چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا ذکر قرآن کریم کی آیت سورہ میں موجود ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قمیض کرتا لگانے سے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اور بھیجنے والے پیغمبر ہیں، اس وسیلہ ذریعہ کو استعمال کرنے والے بھی پیغمبر ہیں۔ اگر یہ شرعی طور پر شرک، کفر، ناجائز ہوتا تو کبھی بھی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارگاہ سے متصور نہ ہوتا۔ اس کے بعد جب وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ایک کو پہلے بھیجا جنہوں نے کرتا پیش کر کے خوشخبری سنائی، اور بعد والے بھی تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد کنعان پہنچے، اپنے والد ماجد سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اب ملاقات کے وقت وہ بیٹے چونکہ شرمندہ تھے، انہوں نے غلطیاں کی تھیں، ان کا قصور تھا، اس وجہ سے انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں درخواست کی۔ قالو بولے، یا ابانا، اے ہمارے والد ماجد، استغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگو، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کا، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہو گیا کہ بزرگوں کے پاس جا کر اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نہیں سنتا، تم فلاں جگہ جا کر فلاں عالم کے پاس، فلاں پیر کے پاس، فلاں پیغمبر کے پاس، فلاں جگہ جا کر دعا کرواتے ہو، کیا اللہ یہاں نہیں سنتا؟ وہ تو سب کی سنتا ہے، سب کی مانتا ہے۔ بات سننے کی نہیں ہے، اللہ رب العالمین سمیع ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ سنتا نہیں تو اسلام سے خارج ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے ماننے کی بات ہے، اللہ سنتا ہر جگہ ہے، مانتا اپنے پیاروں کے پاس، سننے کی بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کی قبولیت کی بات ہے، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ یہ موجود ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کر کے، انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں۔ یہاں نہ کعبے کا ذکر ہے، نہ کسی اور مقام مسجد کا ذکر ہے۔ جاؤکا، آپ کے پاس آ جائیں۔ آپ اگر بیت اللہ میں ہیں تو وہاں آئیں، آپ غار ثور میں ہیں تو وہاں آئیں، آپ غار حرا میں ہیں تو وہاں آئیں، آپ عرفات میں ہیں تو وہاں آئیں، آپ غزوہ بدر میں ہیں تو وہاں آئیں، آپ غزوہ حنین میں ہیں تو وہاں آئیں، آپ مدینہ میں ہیں تو وہاں آئیں، آپ روضہ اطہر میں ہیں تو وہاں آئیں۔ جاؤکا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہاں آ کر اللہ سے معافی مانگے۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرے، سفارش کرے، شفاعت کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر وہ اللہ رب العالمین کو ضرور توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی جان پر شرک کر کے، کفر کر کے، گناہ کر کے ظلم کرتا ہے، جب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، رسول کریم کی ذات اطہر کو اپنے لیے شافی پیش کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفقت فرماتے ہوئے اس کی شفاعت فرماتے ہیں، تو وہ ضرور اس کی توبہ قبول ہے اور ضرور وہ بخشا جاتا ہے۔ تو اس سے دوسری ہے، تو یہاں انہوں نے کہا کہ اے ہمارے والد ماجد، آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی کی، بخشش کی دعا کریں، ہم تو بڑے خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی،
इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ठुकराया नहीं कि तुम इतने बड़े ख़ताकार गुनाहगार हो, तुमने इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए दुआ नहीं करता, नहीं फरमाया। कहा क़ाल सौफ़ अस्तग़फ़िरु लकुम, कहा अनकरीब मैं तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूँगा अपने रब से, रब्बी, अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। मुफस्सिरीन फरमाते कि उस वक्त याकूब अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दुआ क्यों नहीं की? बेटे अर्ज़ कर रहे हैं अब्बा जान हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें, याकूब अलैहिस्सलाम कहते हैं अनकरीब मैं दुआ करूँगा अपने रब से, उस वक्त नहीं कर रहे हैं, अनकरीब करूँगा। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको बताया कि तुम एक मेरे मुजरिम नहीं हो, यूसुफ़ के भी मुजरिम हो। जब हमारी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से पूछूंगा कि आपने भाइयों को माफ़ किया है? अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने माफ़ किया तो फिर मैं तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। यहाँ से एक मसला साबित हो गया कि जिसका जुर्म किया जाता है माफ़ी का हक़ उसे हासिल है, किसी मुनसिफ़ को नहीं, किसी वडेरे को नहीं, किसी फ़ैसला करने वाले को नहीं। मसलन एक शख्स के साथ ज़्यादती हुई और सरदार ने कह दिया जाओ मैंने माफ़ कर दिया, तुझे माफ़ करने का इख्तियार किसने दिया है? ज़्यादती किसी से हुआ है, माफ़ कोई दूसरा कर रहा है। कुरान ने ये तालीम दिया, पैगम्बर ने ये बताया कि तुम सिर्फ़ मेरे मुजरिम होते तो मैं भी दुआ करता, तुम तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी तकलीफ़ पहुँचा के उस अज़ियत पहुँचा चुके हो, अब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का माफ़ करना भी ज़रूरी है। जब वो माफ़ करेंगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करूँगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो बख्श फरमाने वाला मेहरबान है। तो भाइयों ने अर्ज़ किया था कि हमने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से अपनी ख़ताओं का ज़िक्र किया तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा ला तसरीब अलैकुमुल यौम, बाप ने कहा ये तुम्हारा बयान है, जब मैं पूछूंगा मुझे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने भाइयों को माफ़ किया है तो फिर तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ होगी, और फिर जब मैं दुआ करूँगा तो यकीन है कि अल्लाह बख्श फरमाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेहरबान है। फलम्मा दखलू अला यूसुफ़ आवा इलैहि अबवैहि, जब वो सब के सब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को अपने पास जगह दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जब याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँचे तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वलीद बिन रैयान जो बादशाह था उसके साथ बहुत बड़ा काफ़िला इस्तकबाल के लिए बाहर लेकर खड़े थे, जिसमें हर तरह के सजावट की चीज़ें थीं। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत ही खुश था कि मेरे वालिद माजिद की मिस्र में आमद है और इस्तकबाल के लिए खड़े हैं, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नकाहत और कमज़ोरी की वजह से अपने बड़े बेटे यहूदा के सहारे टेक लगाए हुए आ रहे थे। तो इतने बड़े काफ़िले को देखा, इस्तकबालिया लोगों को देखा तो पूछा कि ये मिस्र का कोई फ़िरौन बादशाह, यानी मिस्र के बादशाह को फ़िरौन कहते थे, कोई भी हो, तो ये मिस्र का फ़िरौन है जो यहाँ से उसका गुज़र है, इतने बड़े लोग खड़े हैं। उसी वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हुए, कहा नहीं ये आपके शहज़ादे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं जो बहुत बड़ा लश्कर लेकर आपका इस्तकबाल कर रहे हैं। सिर्फ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं, ज़रा आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखिए, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़रिश्ते भी उतर कर तुम्हें मरहबा कह रहे हैं, तुम्हारे खुशी में शरीक हैं, क्योंकि जब तुम गमगीन थे तो फ़रिश्ते तुम्हारे गम की वजह से रो रहे थे। आज वो यहाँ हाजिर हैं और तुम्हारी इस खुशी में, तुम्हारे इस सुरूर में, राहत में वो हाजिर हैं। तो जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास मिले, उन्होंने उनको जगह दी। वक़ाल लदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मिस्र में दाखिल हो जाओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्ज़ी चाहत से, और तुम जो है इसमें हमेशा अमान के साथ रहोगे। मुफस्सिरीन ने भी यहाँ बड़ी प्यारी बात की कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहा कि मिस्र में अमन के साथ दाखिल हो जाओ। इसकी वजह यह है कि किनान के लोग इससे पहले मिस्र में दाखिल नहीं हो सकते थे, और मिस्र के हाकिम जो है उनके ऊपर तशद्दुद करता था, वो उनसे ज़्यादा खौफज़दा थे। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उस तारीख़ को दोहराया कि वो ज़माना बदल गया है, अब चूँकि यहाँ वज़ीर ख़ज़ाना जो है, बादशाह का ख़ास मुकर्रब जो है, वो किनान का एक शहज़ादा है, याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ़ है। अब किनान के लोगों को यहाँ दाखिल होने में किसी किस्म का खौफ नहीं है, किसी किस्म का डर नहीं है, हमारी तरफ से हर लिहाज से उसे अमन दिया जाएगा, आप अमन के साथ दाखिल हो जाइए। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ दाखिल हुए, और मुफस्सिरीन लिखते हैं कि ये 10 मुहर्रम शरीफ का, 10 मुहर्रम को, यौम आशूरा को
याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिस्र में मुलाकात हुई, और जो याकूब अलैहिस्सलाम के साथी अफराद थे जिनकी तादाद भी मुफस्सिरीन ने 72 या 73 जिक्र किया है। 72 और 73 अफराद के लगभग उनके ख़ानदान के लोग थे जो मिस्र में सब के सब दाखिल हुए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको इतनी बरकत दी कि वहाँ जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन के ख़िलाफ़ लश्कर निकाल के लाया तो बनी इसराइल 6 लाख थे, यानी 72 अफराद में से 400 साल के अंदर अंदर 6 लाख अफराद बन गए, इतनी उनकी जो है आबादी बढ़ गई। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम है इसराइल है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल के नाम से कुतुब समाविया में ज़िक्र किया गया है। बनी औलाद को कहते हैं, यानी बनी इसराइल उन लोगों को कहते हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं। तो यहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ दाखिल हुए और अपने बेटे से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने उनको जगह दी, यानी अपने साथ एजाज़ के तौर पर तख्त पे बिठाया जो आला मकाम था, और उनके भाई दूसरे लोग नीचे बैठे और तमाम अफराद जो शहरी लोग थे उनके साथ बैठे, लेकिन इन 2 अफराद को एजाज़ के साथ तख्त पर बिठाया गया। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चूँकि वालदा बुनियामीन के विलादत के बाद वो वफ़ात पा चुकी थी, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के खाला उन लैया से उनकी शादी हुई थी, तो खाला चूँकि माँ का कायम मकाम है, फिर वालिद की दूसरी बीवी होने के नाते सौतेली माँ हैं, तो कुरान मजीद ने इस वजह से यहाँ उनको अबवै का ज़िक्र किया कि वालिदैन को तख्त पे बिठाया, यानी याकूब अलैहिस्सलाम तो उनके वालिद और सौतेली माँ लैया बीवी जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ होने के साथ साथ उनकी खाला भी है, और खाला को कुरान और सुन्नत में वालदा का मकाम और मर्तबा दिया गया है। आज भी अगर उलमा से कोई पूछा जाए कि यतीम बच्चे को किसके हवाले कर दिया जाए, जो मासूम शीरख्वार है उसकी परवरिश की ज़िम्मेदारी किसको आयद की जाए, तो तमाम उलमा इस पर फतवा देते हैं कि उनके खाला के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि खाला बमिसल माँ के है, जितनी माँ की मोहब्बत है उतनी वो खाला की मोहब्बत है अपने भतीजे, अपनी भांजी और भतीजी के लिए। तो ये यहाँ से पता चला कि ये खाला जो है ये माँ का दर्जा रखती है, तो इस वजह से उनका इज़्ज़त एहतराम के लिए भी यही हुक्म किया गया है। चचा के लिए कहा गया कि वो बाप के कायम मकाम है, बाप का इज़्ज़त और एहतराम चचा का इज़्ज़त और एहतराम, और इसी तरह माँ का इज़्ज़त और एहतराम और खाला का इज़्ज़त और एहतराम बराबर रखा गया है कुरान और सुन्नत में। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वालिदैन को तख्त पर बिठाया। उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम से उनकी गुफ्तगू हुई है, फिर भाइयों ने उसको ताज़ीमी सजदा किया है, जिसका अगली आयतों में ज़िक्र है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल इस पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला जल्ल शानहू अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए।